Good morning class. Today I will give some application on potential because in previous lecture I will teach you. I have already taught you potential and discussion on potential. So now I will give you some application on potential. First application on potential. दो एप्लीकेशन ऑलरेडी दे चुके थे. थर्ड एप्लीकेशन नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर. पोटेंशियल ड्यू टू hollow sphere. Consider there be hollow sphere of radius r. Consider there be a hollow sphere of radius r. Q charge is uniformly distributed. Then potential at O, Q charge उसके ऊपर uniformly distributed. Let P be the point inside the sphere. X is less than R. Case 1, if x is less than r, then V is equal to होगा kq by r, because unit positive charge is brought from infinity to the surface, up to the surface of the sphere. No, we cannot bring this unit positive charge inside the sphere. So potential at any point inside the sphere, even at the center hollow sphere, the potential will be kq by r. Case 2, if x is equal to r, then again V is equal to kq by r. Case 3, if x is greater than r, V is equal to kq by x. एक रूल क्या है, पहले तो ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं. इसका ग्राफ कैसा है, V और x के बीच में, if q is greater than 0, Q is less than 0 होगा तब क्या होगा, फर्स्ट कांस्टेंट आएगा, उसके बाद बढ़ेगा. इसमें कांस्टेंट आएगा, घटेगा. कांस्टेंट देन डिक्रीज, कांस्टेंट देन इंक्रीज. Q by less than 0, Q is greater than 0 पर दो पोटेंशियल. इससे एक रूल क्या बना, रूल बना कि each point lie inside the sphere or at the surface of the sphere, radius is considered, and each point lie outside the sphere, distance is considered. इसको नोट कर लीजिए. Application 4, if point lie inside the sphere or surface of the sphere, radius is considered, or if lie outside the sphere, distance is considered. अगर पॉइंट लाई इन स्फीयर के अंदर रहता है तो रेडियस ऑन द स्फीयर और सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो रेडियस कंसीडर करते हैं. और आउटसाइड द स्फीयर रहता है तो डिस्टेंस कंसीडर किया जाता है टू डिटरमाइन द पोटेंशियल.
to determine the potential. मानते 3 concentric स्फीयर है, एक का रेडियस ए है, चार्ज Q1 है, दूसरा स्फीयर है उसका रेडियस B है, चार्ज Q2 है, तीसरा स्फीयर है इसका रेडियस C है, Q3 चार्ज. फाइंड द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए बी सी. प्रत्येक का पोटेंशियल आप निकालिए, इसका पोटेंशियल. फाइंड द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर ए बी एंड सी. तो भी ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इस स्फीयर के कारण कितना हो जाएगा KQ1 बाई ए. अब इस पॉइंट पर इस चार्ज के कारण भी पोटेंशियल होगा, तो इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर में आ रहा है तो इसका रेडियस कंसीडर करेंगे Q2 के लिए. कितना हो जाएगा KQ2 बाई बी. इस स्फीयर के लिए अगर हम निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पर हम इस स्फीयर पर पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो इस स्फीयर के लिए अंदर पॉइंट है तो इसका भी रेडियस लेंगे तो कितना हो जाएगा KQ3 बाई सी. अब अगर B पर निकालना चाहते हैं इस पॉइंट पर, तो इस स्फीयर के लिए ये बाहर पॉइंट है तो इसका कितना हो जाएगा KQ1 बाई बी. और इसके लिए तो सरफेस पर है तो KQ2 बाई बी. और इस स्फीयर के लिए अंदर पॉइंट है तो इसका हो जाएगा KQ3 बाई सी. रेडियस कंसीडर करते हैं. सी पर सब अंदर नहीं है, सी पर सब पॉइंट, ये पॉइंट इस चार्ज सब अंदर में है, इसलिए KQ1 बाई सी प्लस KQ2 बाई सी और ये ऑन द सरफेस से KQ3 बाई सी. वोल्ट वोल्ट वोल्ट. इस तरह से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं. चार्ज के जगह पर चार्ज डेंसिटी भी दिया रहेगा तो चार्ज डेंसिटी कन्वर्ट कर लेंगे. 4/3 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा देकर के निकालेंगे. 4 पाई ए स्क्वायर इंटू सिग्मा, ऐसा जैसे जैसा सिग्मा 1 सिग्मा 2 जो भी दिया रहेगा. Application number 5 to determine the potential due to solid sphere, solid insulating sphere, क्योंकि conducting हो तो वो hollow की तरह behave करेगा. Application 5 to determine the potential at a point due to solid insulating sphere. Consider there be solid insulating sphere of radius r. Q charge is uniformly distributed throughout the region. P be the point at a distance of x. P be the point at a distance of x, where we would like to determine the potential. Consider there be a solid sphere of radius r. Q charge is uniformly distributed. P be the point inside the sphere at a distance of x from center. तो ये क्या कर रहा है, ये दो में बांट रहा है. पहला इनर पार्ट और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसके लिए. तो पहले V1 निकाल लेते हैं. V1 इज इक्वल हो जाएगा KQ डैश बाई एक्स. अब Q डैश का वैल्यू निकालते हैं यूनिटरी से. 4/3 पाई RQ के लिए कितना चार्ज था Q, तो 4/3 पाई XQ के लिए कितना हो जाएगा Q बाई RQ इंटू XQ. बाकी कट जाएगा. That is Q dash is equal to Q XQ by RQ. ये वैल्यू इसमें जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं. V1 is equal to K Q XQ
बाई आर क्यूब इंटू एक्स, एक्स एक्स कर दिया, एक्स स्क्वायर हो गया। V1 इज इक्वल टू के क्यू एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब, एक हो गया इक्वेशन। अब हम V2 निकालते छोटा, बाकी रिमेनिंग सेक्शन निकाल, इसके कारण निकालना चाहते हैं ये जो पोटेंशियल बाकी स्क्वायर बचा सेक्शन, एक छोटा सेक्शन लेते हैं इसमें। We consider small section dr at a distance of r. We consider a small section dr at a distance of r. साफ से बना देते हैं, तो समझाने के लिए किए थे। P पॉइंट वास्तव में इस जगह पर है, P पॉइंट है, एट ए डिस्टेंस ऑफ x, रेडियस r है। एक छोटा सेक्शन दिए है जिसको दो भाग में बांट रहा है, सेक्शन है एट ए डिस्टेंस ऑफ जो रिमेनिंग सेक्शन उसमें r डिस्टेंस पर रखे, तो dV2 इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू k dq, मानते उसका चार्ज dq है बाई r। अब dq निकालते हैं, 4/3 पाई r क्यू के लिए कितना चार्ज है, q चार्ज है, तो 4 पाई r स्क्वायर dr, इसका वॉल्यूम कितना होगा, सरफेस एरिया 4 पाई है, थिकनेस है इसका dr, तो dr के लिए कितना हो जाएगा, q बाई 4/3 पाई आर क्यू इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, तो 4 पाई से 4 पाई दे देंगे, डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 3q आर स्क्वायर डी आर बाई आर क्यू। तो dV2 इज इक्वल होगा k, q के जगह 3q आर स्क्वायर डी आर बाई आर क्यू इंटू आर, आर से आर कर जगह आर बचेगा, तो dV2 अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो बचेगा 3k³ बाई आर क्यूब, आर डी आर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक ले जाने, x से लेकर के r तक, x टू r, V2 हो जाएगा, V2 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 3k³ बाई आर क्यूब, आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2, x से लेकर के r, 3k³ बाई 2r क्यूब, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू रिमेनिंग सेक्शन। इसको नोट कीजिए। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ये इक्वेशन 2 निकला, V2 है, V1 निकला है, ये 2 है, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट कितना है k क्यू एक्स स्क्वायर बाई आर क्यूब, और सेकंड कितना है 3k³ बाई 2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो k³ बाई आर क्यूब कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो k³ बाई आर क्यूब एलसीएम 2x स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, 2 बाहर निकाल लेते हैं, k³ बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द पॉइंट पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, दिस इज द, आपको जो नीट में एग्जाम देना चाहते हैं उसको तो एकदम इसको फॉर्मूला याद रखना, और जो नीट में नहीं मेन में या कहीं भी उसको भी फॉर्मूला याद रखना। हम इसलिए इसको डिराइव किए, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते थे, लेकिन हम इसलिए इसको डिराइव किए कि नीट के लड़के, जो जी मेन के लड़के हैं, वो कम से कम डिराइव करना जाने कि कैसे डिराइव किया जाता है। ओके, ना इसको हम इसका ग्राफ बनाते हैं इसके आधार पर कि इफ x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू 0, मतलब एट द सेंटर, एट द सेंटर क्या होगा, b इज इक्वल टू k³ बाई 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर, r स्क्वायर से r कैंसिल हो जाएगा, 3k³ बाई 2r। इफ x इज इक्वल टू r एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर, कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू k³ बाई 2r क्यूब इंटू x की जगह आप दे देंगे 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, कितना बचेगा, k³ बाई 2r क्यूब इंटू 2r स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, r स्क्वायर से एक r कट गया, कितना होगा, k³ बाई r। इफ x इज ग्रेटर देन r होगा
तो V इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स, बाहर होगा तो उसी तरह से पोटेंशियल निकालेंगे। तब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ बहुत बार पूछा है। Q ग्रेटर देन 0 अगर होगा, इधर V रख लें, इधर x रख लें, तो सेंटर पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल होगा, उसके बाद सरफेस पर आएगा। उसका मानेगा अगर V पोटेंशियल है, अगर इसका V पोटेंशियल तो इसका 3V/2 है, 1.5 गुना ज्यादा। और उसके बाद सरफेस से बाहर अगर जाएंगे तो ये घटेगा Q ग्रेटर देन 0 में। Q इज लेस देन 0 पर अगर करते हैं, Q ग्रेटर देन 0 है, Q लेस देन 0 पर है, तो इस तरह से घटेगा। यहाँ पर -3V/2 है, यहाँ पर V हो गया, और उसके बाद बढ़ेगा, इधर x इधर V। तो Q लेस देन 0, Q ग्रेटर देन, दोनों के लिए ग्राफ होगा, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू स्फीयर। एप्लीकेशन नंबर 7 कितना है पता नहीं। एप्लीकेशन नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6 हो गई। To determine distribution of charge, between two spheres। तो इसको कुछ रूल फॉलो करना है। पहला, पॉजिटिव चार्ज always flow from high to लो पोटेंशियल, हाई से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। दूसरा पॉइंट है एंड वाइस वर्सा, नेगेटिव चार्ज ठीक उल्टा। दूसरा पॉइंट है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल विल बी सेम, potential will be same। और तीसरा, चार्ज will follow कंजर्वेशन थ्योरी। कंजर्वेशन थ्योरी को फॉलो करेगा। तो मानते हैं क्वेश्चन देते हैं, एक स्फीयर है, दूसरा स्फीयर है वेरी फाइनाइट डिस्टेंस, a रेडियस है, इस पर 2q चार्ज है, एक और रेडियस है 2a, इस पर 3q चार्ज है। स्फीयर A और B है, बोथ आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। व्हेन दे आर कनेक्टेड, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम A to B और B to A। क्वेश्चन पूछ सकता है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट विल बी द चार्ज। तो सबसे पहले हम इसको पोटेंशियल निकालेंगे। A का पोटेंशियल होगा K2q/A, और B का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K3q/2A। तो ये ऑब्वियस, ये 1.5 KQA है और 2 KQA है। V is greater than VB, so charge will flow from A to B, इस पर अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा। इधर दिमाग में बैठा करके रखना कि अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड ओनली पोटेंशियल। एग्जांपल में लिख सकते हैं कि बाहर में अगर एक बकेट है, पानी से भरा हुआ है, एक बकेट खाली है, बेल के अंदर, कुएं के अंदर काफी पानी है, तो वो पानी वहां से निकल करके बकेट में नहीं आएगा, लेकिन बकेट का पानी कुआं में जा सकता है, क्योंकि बकेट जो है हाई पोटेंशियल के ऊपर है, इसलिए हाई से लो की ओर जा रहा है। अमाउंट ऑफ चार्ज बेल में ज्यादा है, अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा बेल में है बकेट की तुलना, फिर भी चार्ज या पानी हाई पोटेंशियल से लो की ओर ही फ्लो करता है। दूसरा, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं इस पर Q1 चार्ज है, इस पर हो जाएगा 5Q - Q1। कंजर्वेशन थ्योरी को फॉलो करेगा, पहले भी 5Q था, बाद में भी जोड़ेंगे तो 5Q आ गया। तो ये पॉइंट हो गया कि पॉजिटिव फ्लो करेगा, इससे आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल विल बी सेम, चार्ज विल फॉलो, ये बता दिया, पोटेंशियल सेम होगा, ये बता रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसका पोटेंशियल कितना होगा, KQ/A, इसका पोटेंशियल क्या होगा, K5Q - Q1/2A। K से K कट गया, A से A कैंसिल, 2Q1 बराबर 5Q - Q1, 3Q1 इज इक्वल टू 5Q,
therefore Q1 इज इक्वल हो जाएगा 5Q/3 और Q माइनस Q1 इज इक्वल होगा 10Q/3। मतलब एक पर 5Q/3 होगा, दूसरे पर 10Q/3 चार्ज होगा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यही क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन अगर इसके एक दूसरे के अंदर है, एक दूसरे के अंदर एक स्फीयर है, इसका चार्ज है 6Q, दूसरा स्फीयर है, इसका Q, इसका रेडियस A है, इसका 2A है, इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा, A से B करेगा कि B to A करेगा। तो हम पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल ऑफ A कितना हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो KQ/A, इसके कारण भी इसको पोटेंशियल होगा 6KQ/2A। अब VB का कितना हो जाएगा KQ/2A और प्लस 6KQ/2A, तो 7KQ/2A और ये कितना हो जाएगा 2 और 6 8KQ/2A। तो BA is greater than BB, so charge will flow from A to B, will flow from A to B, A से B करता है, इसलिए चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर हमेशा बाहर की ओर, कंडक्ट जैसे कराएंगे चार्ज नीचे का सब बाहर चला जाए, क्योंकि अंदर का पोटेंशियल ज्यादा है, बाहर का कम है। मानते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इस पे Q1 है, टोटल 7 की है तो 7Q माइनस Q1 होगा। अब इसका पोटेंशियल निकालते हैं, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, KQ1/A प्लस K7Q माइनस Q1/2A, दिस इज इक्वल टू, इसका पोटेंशियल निकालते हैं KQ1/2A प्लस K7Q माइनस Q1/2A, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, KQ1/2A माइनस KQ1/2A इज इक्वल टू 0, तो कितना बचेगा KQ1/2A इज इक्वल टू 0, तो K/2A इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज Q1 इज इक्वल टू 0। मतलब अंदर में कुछ भी चार्ज नहीं रहेगा, बाहर में जितना भी चार्ज सब बाहर चला जाएगा, अपने आप चार्ज रिसाइड कर जाएगा सब बाहर की ओर, एक भी अंदर में कुछ भी चार्ज नहीं रहेगा। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन अंदर में रहेगा या बाहर में रहेगा, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। अब है एप्लीकेशन नंबर 7, कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग, इसमें कुछ रूल है, उसको दिमाग में रख लेना है। पहला पॉइंट है द सरफेस विच इज अर्थ, सरफेस which is earthed have zero potential, जिसको जो अर्थ होगा उसका पोटेंशियल 0 होगा। दूसरा पॉइंट, इंडक्शन मस्ट बी टेकन, इंडक्शन मस्ट बी टेकन, इंडक्शन लिया जाए तो कुछ भी रहा इंडक्शन लिया जाएगा, बट दैट्स ऑल। उसके बाद दो रूल फॉलो करना, कंजर्वेशन थ्योरी से मतलब नहीं है क्योंकि अर्थ में फ्लो कर सकता है। मानते 3 एक क्वेश्चन पूछता है, इसमें 3 चार्ज है, A रेडियस है, इस पे Q चार्ज है, एक और है जिस पर B है, इस पर कुछ अर्थ किया हुआ है, तीसरा C रेडियस है और इस पर कैपिटल Q चार्ज है। फाइंड द चार्ज ऑफ ईच सरफेस व्हेन द सरफेस B इज अर्थ। G पर क्या होगा, तो हम अभी बता कि द सरफेस विच इज अर्थ हैव 0 पोटेंशियल, मान इस सरफेस का पोटेंशियल 0 होगा। इंडक्शन मस्ट बी टेकन, तो Q है तो यहाँ माइनस Q होगा, यहाँ पर Q डैश मान लेते हैं, माइनस Q डैश और प्लस Q डैश होगा। अब इस सभी 1 2 3 4 5 6 चार्जेस के कारण इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल के 0 करेंगे, तो इसके कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा KQ/B, क्योंकि B डिस्टेंस पर है, इसके कारण माइनस KQ/B, इसके कारण फिर प्लस KQ'/B, फिर इसके कारण अंदर आ गया माइनस KQ'/C, इसके कारण प्लस KQ/C, अब CS और KQ'/C, दिस इज इक्वल टू 0। तो KQ/B कैंसिल हो जाएगा और KQ'/C कैंसिल हो जाएगा, KQ'/B इज इक्वल टू माइनस KQ/C, K से K कैंसिल हो गया, Q' इज इक्वल हो गया माइनस QB/C। इस पर फर्स्ट सरफेस पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, फर्स्ट सेकेंड
थर्ड, फोर्थ, 5। तो फर्स्ट पर कितना चार्ज होगा? फर्स्ट पर चार्ज क्यू होगा, सेकंड पर माइनस क्यू होगा, माइनस क्यू होगा, थर्ड पर क्यू डैश है माइनस क्यू बी बाई सी होगा, फोर्थ पर प्लस क्यू डैश है तो क्यू बी बाई सी होगा, और फिफ्थ पर क्यू माइनस क्यू बी बाई सी होगा। इस तरह से हर एक सरफेस का अलग अलग चार्ज हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस एप्लीकेशन 7 के बाद बताते हैं कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, इसको नोट कर लीजिए। It is a work done to bring potential difference. It is a work done to bring unit positive charge from one point to another point is called पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मानते हैं पॉइंट चार्ज क्यू है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, एक टेस्ट चार्ज Q0 को ए से लेके बी तक ला रहे हैं जो एट ए डिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 है। छोटा सेक्शन dx लिए जो एट ए डिस्टेंस ऑफ x है। कंसीडर देयर बी पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट O having electric field A. Test charge Q0 brought from A to B, which is at a distance of R1 and R2 from point O. We consider a very small displacement dx at a distance of x from O. So dw is equal to क्या होगा? F dot dx होगा f dx cos theta, theta 180 है, minus f dx, theta is 180। तो dw बराबर हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको k लिख लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन को, k q इंटू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्यू नॉट किधर ले आते हैं? डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका डी भी हो जाएगा माइनस के क्यू बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेट करते हैं, जीरो वी ए माइनस डी बी, ए से बी तक ला रहा है और R1 से लेके R2 तक जा रहा है। तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी, वी ए भी लिमिट है, इसका कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू, माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स होता है R1 से R2 तक। वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू के क्यू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एसआई यूनिट वोल्ट है। एसआई यूनिट वोल्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन, it does not depends on reference point, does not depend on reference point, जबकि पोटेंशियल रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इस पर एक एप्लीकेशन, एक ही एप्लीकेशन है कि अगर हम टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस को नोट कर लीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। Potential difference between two concentric sphere. Concentric sphere का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो मानते हैं कि स्फीयर है जिसका रेडियस ए है, दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस बी है, इस पर चार्ज क्यू है, इस पर चार्ज क्यू है। तो क्या होगा इसका पोटेंशियल? ए है, ये बी है, तो पोटेंशियल ऑफ ए पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल क्या होगा? के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई बी, और पोटेंशियल ऑफ बी कितना हो जाएगा? के क्यू बाई बी प्लस के क्यू बाई बी। तो बी ए माइनस बी बी बराबर क्या होगा? के क्यू बाई ए प्लस के क्यू बाई बी माइनस के क्यू बाई बी माइनस के क्यू बाई बी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो के क्यू कॉमन हो गया, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। हमको ऐसा नहीं कि डेल भी पोटेंशियल डिफरेंस, ये बताने के लिए नहीं कि पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना नहीं है, दोनों को निकाल के माइनस कर देना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस। पोटेंशियल डिफरेंस डज नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके रखिए।
potential difference does not depend on the charge present on the outer surface. outer surface पर प्रेजेंट है, उस पर डिपेंड नहीं करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इसका मतलब अगर कोई किसी का बोल देगा दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, इसका रेडियस है, इसका 2 है, जो भी है b है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस b है माइनस bb, इसका a है, ये b है, तो b है माइनस b बराबर 20 वोल्ट. अब इस पे बोल रहा कि q जगह पर 20 माइक्रोकूलम चार्ज बाहर में बढ़ा दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट ही रहेगा. चार्ज बढ़ा दें घटा दें आउटर सरफेस पर, उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं. वो जो भी डिपेंड करेगा इनर सरफेस के कितना चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा. दैट्स व्हाई अब अगले क्लास में हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाएंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, और पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे. ओके, थैंक यू. देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको.